Dear friends, today we are going to discuss some of the typical MCQs on the partnership chapter on partnership admission chapter. So let's start directly the MCQs. ABCR partners having PSR of 2 to 1. D is admitted as a new partner for 1 for share. It was decided to revalue the machine which is appearing in the books at 1 lakh. C was credited with 4,000 being a profit on revaluation. What's the revalued amount of machine? When there is a revaluation, and all profit on the account of revaluation is credited to the partners in profit sharing ratio. Let the profit be x. It means हमारा प्रॉफिट x है, c का शेयर इसमें कितना है 1/5, तो 1/5 of x equals to 4,000. It means x equals to 20,000. It means profit is 20,000. That means the revalued amount is 1,20,000. It's a simple. Now you will find more tough questions. Let's know. ABCR partners having PSR of 2 to 1. D is admitted as a new partner for 1 for share. On this date, A took over the furniture of 20,000 at 15,000. What is the net impact on the A's capital account? जब पार्टनर एक फर्नीचर ले रहा है तो व्हाट एंट्री विल पास? वी विल पास एन एंट्री A's capital account debit 15,000 because he has taken the furniture. Reval account debit 5,000 because there is a loss of 5,000. To furniture 20,000. Now अब reval का जो लॉस है, reval का लॉस will distribute to the partners in profit sharing ratio. The loss is 5,000. A share in it is 2,000. It means in totality the A will be credited with rupees 15 plus 2,000. A will be credited with A will be debited with rupees 17,000. ABCR partners having PSR of 2 to 1. D is admitted as a new partner for 1 for share. On this date, it's found that lands which appearing in the books at 120 is undervalued by 40%. The net profit or loss on revaluation is how much? यहाँ पे लैंड हमारी कितनी है 120 है, which is undervalued by 40%. Let the original price, let the market value of the land be x. It means the present value is x minus 40% of x, which comes to 120. Now if we solve x, it will comes to be 2 lakh rupees. We can check 2 lakh rupees लैंड की वैल्यू होनी चाहिए, बट आज की डेट में 40% कम है. 2 लाख का 40% निकालेंगे 80,000 आएगा. 80,000 लेस करते 120. So means we need to increase the value of land by 80,000. So there will be the profit of rupees 80,000 rupees. ABCR partner having PSR of 2 to 1. D is admitted as a new partner for 1 for share. On this date, investment is found to be overvalued by 30% and C is debited with rupees. What's a revised value of the investment? यहाँ पे हमने C को कितने से डेबिट करा है 9,000. देयर इज अ लॉस. तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल लॉस. टोटल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज हाउ मच? C का शेयर 9,000 C का शेयर 9,000 आ रहा है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:5 था, तो टोटल लॉस हमारा कितना हो गया 45,000. नाउ दिस लॉस इज इक्वल्स टू द 30%, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टमेंट इज ओवर वैल्यूड. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30% हमारी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा टोटल लॉस कितना आ रहा है 45,000. नाउ टोटल लॉस इज 30%. कितना हमारा जितनी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होनी चाहिए उसका 30% इज लॉस 30,000. तो हम इसका अगर 30% डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, ये हमारा कट के आ गया 35, 1,50,000. मीन्स इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है आज की डेट में वो हमारी बुक्स में कितनी आ रही है 1.5 लाख. एंड दिस इज ओवर वैल्यूड बाय 30%. तो इट मीन्स हम इसका 30% लेस करेंगे तो 45. तो इन्वेस्टमेंट की जो हमारी रिवाइज वैल्यू है वो कितनी आ गई 105. ABCR partner having PSR of 2 to 1. D is admitted as a new partner for 1 for share. On this date, land is valued at 105 and stock is decreased by 10. A was credited with 6,000 on account of revaluation of asset. अब A को कितना शेयर मिला है 6,000. यह हमने क्रेडिट करा है, मीन्स देर इज अ प्रॉफिट. तो टोटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन
हमारा कितना आ गया, ये आ गया 6000 इंटू 5/2, इट मीन्स 15,000। दिस इज द टोटल प्रॉफिट, जिसमें ये प्रॉफिट कब आ रहा है, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज करने के बाद। तो अगर हम इसमें स्टॉक की वैल्यू जो डिक्रीज करी है वो ऐड कर दे, तो मीन्स दिस इज द अमाउंट बाय विच लैंड इज टू बी इंक्रीज। हमने लैंड अभी कितने की वैल्यू करी है, लैंड इज वैल्यूड एट 105, तो हमने ये लैंड 25,000 से इंक्रीज करी है, इसका मतलब ओरिजिनल लैंड कितनी होगी, 80,000 रुपीज। ABCR partners having PSR of 2 to 1, D is admitted as a new partner for 1 first share. On this date, investment was appearing in the books at 50,000 and IFR was rupees 10,000. A is debited with 2,000 on account of revaluation of asset. अब यहाँ पे ए को हमने कितने से डेबिट करा है, 2,000 ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। ए की एसेट है 50,000, इट मीन्स लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कितना आ रहा होगा, 2000 इंटू 5/2, इट कम्स टू 5000। और ये लॉस कब आ रहा होगा, जब हम लोगों ने IFR पूरा यूज़ कर लिया होगा। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई है वो कितने से हुई है, 10,000 जो हमने IFR यूज़ कर लिया, एंड आफ्टर दैट देर इज़ अ लॉस ऑफ 5,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज डाउन बाय रुपीज 15,000। तो रिवाइज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 50,000 माइनस 50,000 minus 15,000, it comes to 35,000. Answer is C. ABCR partner having PSR of 532. D is admitted as a new partner for 1/4 share. On this date, machine of 10,000 was used to settle unrecorded liability of 10,000 12,000. What's the amount of profit or loss on account of revaluation? अगर हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, तो हमारी एंट्री क्या बनी, रिवेल अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 12,000 रुपीज़। अब इस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हम लोगों ने सेटल करा बाय गिविंग मशीन ऑफ 10,000। तो हमने एंट्री क्या पास की, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 12,000 टू मशीन 10,000 टू रिवेल प्रॉफिट हुआ 2,000। तो नेट में हमने रिवेल को जो करा है 12,000 रुपये से डेबिट करा है और 2,000 रुपये से हमने इसको क्रेडिट करा है। तो नेट में हमने रिवेल को कितने से डेबिट करा है, माई मिस्टेक, 10,000। द अमाउंट ऑफ लॉस on account of revaluation is the loss of rupees 10,000. ABCR partners having PSR of 532. D is admitted as a new partner for 1/4 share. On this date, machine of 10,000 was used to settle unrecorded interest of 12,000 payable on account of loan from A. What's the effect on A capital account? यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री पास करेंगे तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, अगेन रिवेल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, दिस इज द पेबल 12,000 इररिस्पेक्टिव के इंटरेस्ट ए का लोन का आउटसाइडर, दिस इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी फ्रॉम द फर्म पर्सपेक्टिव। हमने ये इंटरेस्ट पेबल को कैसे सेटल करा है, बाय गिविंग द मशीन। तो इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू मशीन 10,000 टू रिवेल 2,000। तो देर इज अ लॉस ऑफ हाउ मच, 10,000। इस पूरी एंट्री में कहीं भी ए अकाउंट अपीयर नहीं हो रहा, तो टोटल हमारा रिवेल का लॉस कितना है, 10,000 रुपीज। इसमें ए का शेयर कितना है, 5/10 हाफ, तो ए विल बी डेबिट विद रुपीज 5,000। ABC are partners having PSR of 3:2. C is a new partner and brings stock of 5 lakh and his goodwill of 1 lakh towards his capital and share of goodwill. The new ratio becomes 3:1. A was credited with rupees 12,000 as his share of goodwill. What the present value of goodwill? यहाँ पे ये जो 1 लाख रुपए गुडविल का अमाउंट है, दिस इज नॉट एनी वे रिलेटेड टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल। ये वो गुडविल है जो सी अपनी गुडविल इस फॉर्म में लेके आया है। ए को हमने कितना अमाउंट क्रेडिट करा है, 12,000। न्यू रेशियो कितनी है, 3:2:1। तो व्हाट इज द ए सैक्रिफाइसिंग, ए सैक्रिफाइसिंग इज ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 माइनस 3/6, इट कम्स टू 30। 18 minus 15, 3/30, it means 1/10.
ए ने कितना सेक करा है 1/10, तो उसको 1/10 सेक करने के लिए कितना गुडविल का शेयर मिला है 12,000। इट मीन्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल इज 1,20,000 रुपये। A, B are equal partners. C is admitted as a new partner. On C admission, machine is revalued at 50 and C is credited with rupees 10,000 on account of revaluation of machine. जब भी एडमिशन होता है, एसेट लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है, नया पार्टनर को कभी भी डेबिट या क्रेडिट नहीं करा जाता। एक ही सिनेरियो में नया पार्टनर रिवैल्यूएशन में इन्वॉल्व होता है when we are not showing the revised value of machine in the books. It's an indication कि हम यहाँ पे मशीन की रिवाइज वैल्यू बुक में शो नहीं कर रहे। अब यहाँ पे हमको ये समझना है प्रॉफिट या लॉस। जब भी हम एसेट को रिवैल्यू करते हैं और उसकी वैल्यू हम बुक्स में शो नहीं करते रिवाइज वैल्यू, तो नॉर्मल कोर्स में अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में एंट्री पास बनती है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और अगर लॉस होता है तो लॉस में एंट्री पास बनती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। यहाँ पे सी कितना आ रहा है, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, कुछ नहीं कह रहा है, तो रेशियो हो गई 1:1। सी का शेयर कितना है यहाँ पे 10,000। सी को हमने क्रेडिट करा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, तो टोटल लॉस कितना हो रहा होगा 30। टोटल लॉस अगर हम एक्स माने तो एक्स इंटू 1/3 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। तो इसका मतलब जो टोटल मशीन पे लॉस हो रहा है कितना हो रहा है 30,000 रुपीज़। इसका मतलब द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन वाज 80,000। यहाँ पे पार्टनर को यहाँ मशीन की वैल्यूएशन में लॉस हो रहा है, इसलिए हमने न्यू पार्टनर को क्रेडिट करा है, ओल्ड पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे। तो आई होप ये एमसीक्यूज भी आपको अच्छे लगे होंगे। फॉर एनी डाउट्स और any clarification you can SMS me, you can WhatsApp me. In case you find my this MCQs well, request to please subscribe my channel.